اپنے طریقے کو چینج کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں جو ہے محبت نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت چاہتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول و فعل کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرتے ہیں؟ تو اپنے اپنے گریبان میں جھانکو تو یقیناً ہم کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نہیں اپناتے، ان کے طور طریقے کو نہیں اپناتے۔ انہوں نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اس پہ ہم جو ہے بالکل عمل نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو اوپر اوپر کرتے ہیں، رضاعت اس پہ ہمارا نہیں ہوتا۔ ایمان ہونا الگ چیز ہے اور رضاعت ہونا الگ چیز ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے کچھ وقت میں 24 گھنٹے میں انسان جو ہے چاہے کسی دھرم سے بلوم رکھنے والا ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے ایمان پایا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ رضاعت سے بہک جاتا ہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ رضاعت ہونا ضروری ہے، ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہونا ضروری ہے، ہمارا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رضاعت ہونا ضروری ہے۔ اس پہ جو ہے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی کی رات اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی برکتوں سے دنیا میں جو ہے جتنے خرافات تھے، بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، اور مکہ والوں کا یہ معمول تھا کہ عورت جب جو ہے ماہواری خون کی مدت اس کی ہوتی تھی، جب حیض نفاس کا ٹائم اس کا آتا تھا، تو بتاتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ والے اس قدر تھے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں ہی کا جو ہے برتن تک الگ کر دیا کرتے تھے، برتن اور بستر ہر چیز جو ہے الگ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ کی برکت کی وجہ سے بچیوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا، عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا، اور آپ نے جو ہے صرف ان باتوں کو کہا ہی نہیں کہ عورتوں پر آپ ظلم نہ ڈھائیں کہ یہ تمہارے گھر کی ملکہ ہیں، بلکہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا۔ بتاتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیوہ عورت سے جو ہے سب سے پہلا نکاح عقد آپ نے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا، جو 40 سال کی تھی، اور آپ جو ہے باکرہ تھے، آپ کی عمر جو ہے 25 سال تھی، لیکن آپ باکرہ تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے طیبہ تھی، پھر بھی آپ نے جو ہے پہلی دفعہ نکاح کیا، عقد کیا، تو جو ہے ایک جو ہے بیوہ عورت سے کیا، اور عورتوں کو اپنا مقام دیا، اور اس قدر مقام دیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے نگاہوں سے جو ہے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتے تھے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ قوم کو ایک پیغام بھی پہنچانا ہوتا تھا کہ اپنے بچیوں کو جو ہے زندہ درگور آپ نہ کیجئے، بلکہ اپنے بچیوں کو جو ہے آپ محبت کیجئے، ان کا جو ہے جو مقام ہے ان کو اس مقام سے جو ہے نوازیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے عمل کر کے دکھایا، اور ساتھ میں جو ہے جو وہاں مکہ شریف میں جو خرافات پھیلا ہوا تھا کہ جو ہے جب عورت جو ہے حیض و نفاس کی مدت میں ہوا کرتی تھی تو اس کے برتن کو جو ہے الگ کر دیا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود جو ہے عمل کیا کہ اپنے گھر میں جو ہے عورتوں کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے اور سب کا حق برابر دیا کرتے تھے۔ آپ نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دوں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء کرام آئے،
सबकी पेशानी में जो है नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका। और मैं एक बात और मैं आपको अर्ज करता चलूं कि जो खाने काबा का जो खाने काबा जिसके हक में होता है वो जो है मुसलमान होता है, वो अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला होता है और अल्लाह रसूल पर उसकी रज़ात होती है। और नूर मोहम्मदी भी जो है, नूर मोहम्मदी भी ऐसा नूर है ये अल्लाह तबारक व तआला का, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। उनके सदक़े में जो है 1,24,000 या कुछ कमो बेश अंबिया इकराम जितने आए उनके पेशानी में चमका, तो ये नूर मोहम्मदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही में आया। लेकिन ये जो है ऐसी पेशानियों में चमका है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे और ईमान के साथ अल्लाह पर उनकी रज़ात जो है पुख्ता हुआ करती थी, रज़ात जो है साबित हुआ करती थी। वो जो है किसी और की पूजा नहीं करते थे, वो किसी और की इबादत नहीं करते थे। तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो है पेशानी में चमका तो बताते हैं खाने काबा की चाबी उनके पास थी। अबराहा आपने सुना होगा, अबराहा बादशाह था, उसने जो है खाने काबा को मुनाजिम करने की कोशिश की। उनके जो है कुछ ऊँट ले आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, लेकिन आपके जो है पेशानी में नूर मोहम्मदी था। आप जो है अबराहा से बिल्कुल नहीं डरे और उसके पास पहुंच गए, उसके दरबार में पहुंच गए और अबराहा से बाकायदा मुतालबा फरमाया कि आप खाने काबा को मुनाज़म करने का इरादा रखते हैं, आप अगर खाने काबा को मुनाज़िम करेंगे हम उस पर कोई जो है जिद्दोजहद आपसे नहीं करेंगे। अगर आप गलत काम करेंगे, वो अल्लाह का घर है, वो खाने खुदा है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत खुद फरमाएगा। लेकिन बताते हैं अबराहा बादशाह था, लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे हैं, ये तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उनके जो है पेशानी पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर अबराहा की पहली नजर पड़ी तो नूर मोहम्मदी की चमक की वजह से उसकी आंखें जो है ओझल हो जाती हैं और वो अदबन जो है खड़ा हो जाता है। बताते किताबों में आता है अदबन खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर आज तुम हमसे खाने काबा को मुनाहदम न करने की बात करते तो यकीनन हम तुम्हारी बात को मानते, क्योंकि आज हम जो है तुम्हारी पेशानी में ऐसा नूर चमकता हुआ देख रहे हैं जिसको हमने देख लिया है, इसके सदक़े में जो है हम जो है तुम्हारी बात को इनकार नहीं कर सकते थे। हालांकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो है खाने काबा के बारे में कोई बात ही नहीं की, बल्कि अपने ऊँट को जो है अपने ऊँट का मुतालबा किया, उनसे जो है अपने ऊँट तलब फरमाए। बताते हैं हजरत मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ में रहते थे, ये अकेले थे, इनका कोई नहीं था, लोग इनको परेशान किया करते थे, लोग सताया करते थे। इन्होंने खाने काबा में जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया, या अल्लाह मुझे जो है साहिब औलाद बना, हमको जो है औलाद दे, हमें इतने औलाद दे कि हम जो है एक जमात पर हमारी औलाद, हमारे लड़के जो है भारी हो जाएं। किताबों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ को, उनकी मिन्नत को जो है कबूल फरमा दी। और उसी साल जो है स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत कि उनको अल्लाह तबारक व तआला एक पहला बेटा अता फरमाता है और उसी तरीके से 10 साल के अंदर उनको 10 बेटे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ही था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है 10 बेटे अता फरमाए, लेकिन जो है उन्होंने ये मन्नत में साथ में कहा था कि अगर जो है हमारे 10 बेटे हो गए तो एक को हम जो है राह हक में कुर्बान कर देंगे अल्लाह के नाम पर। तो जब 10 बेटे हो जाते हैं, वो जो है
चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। 10 बेटे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा में आते हैं और इनके जो है कुछ चाहने वाले भी हो जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को औलाद देता है तो लोग जो है उसके चाहने वाले भी हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबके सामने जो है खाने काबा में कहा कि हमने मन्नत मानी थी कि जब हमको अल्लाह ताला 10 बेटे अता करेगा तो एक को हम जो है रहे हक में कुर्बान कर देंगे। हम लिहाजा हम जो है इस कौल को जो है अपनाते हुए जो हमने जो है मन्नत मानी थी उसको जो है मानते हुए हम एक लड़के को राह हक में कुर्बान कर देंगे। तो बताते हैं कुरान डाला गया। जब कुरान डाला गया 10 बेटों के नाम जो है पर्ची लुकाई गई तो पर्ची में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला। और बताते हैं ये नूर जो है नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जो है जब जिधर उसको जाना था जिस वसीले की तरफ जाना था उसी वसीले को इसने इख्तियार किया। और बताते हैं कि ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में पहुंच चुका था। जब खाने काबा में सब लोगों ने देखा जो लोग भले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वो मानने वाले नहीं थे लेकिन उनकी चेहरे की नूरानियत को देखी, उनके लड़के अब्दुल्लाह के चेहरे की नूरानियत को देखा तो कहा कि कुरान इनके नाम का निकल गया है लेकिन कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए शरीयत के लिहाज से जो हमारे तुम्हारे बाप दादा हजरत इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम का तरीका रहा है उसी तरीके के रास्ते से जो है कोई रास्ता निकाला जाए कि हजरत अब्दुल्लाह को जो है उनको जो है राह हक में कुर्बान ना किया जाए। बताते हैं बैठक बैठी हुई थी, तमाम लोग जो है मजलिस में जो है इकट्ठा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबों में आता है उन्होंने रास्ता निकाला कि जो है कुरान अंदाजी फिर से किया जाए और ऐसा किया जाए कि 10 ऊँट पहली दफा डाला जाए और अगर ऊँटों का नाम न निकले तो फिर 10 ऊँट बढ़ा दिया जाए। अगर हजरत अब्दुल्लाह ही का नाम निकले तो ऊँट बढ़ाते जाएं। किताबों में आता है कि 10 दफा जो है कुरान अंदाजी किया गया लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ही का नाम निकलता रहा। 10वीं दफा जो है जब 100 ऊँट पूरे हो जाते हैं तो ऊँटों का नाम निकलता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ऊँटों को ज़िबा कर देते हैं और हजरत अब्दुल्लाह को बचा लेते हैं। और यही लड़के जो 10 लड़के इनके रहते हैं खाने काबा की बाद में जो है हिफाजत करते हैं। बाद में जो है जब खाने काबा में हमेशा जो है परेशानियां आती रही, हमेशा जो है खाने काबा को लोग मिटाने की कोशिश करते रहे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद जरिया बनाने वाला रहता है। अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत बड़ा काम लिया और फिर जब नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमका, किताबों में आता है उनकी शादी हो जाती है और हजरत आमिना के साथ उनकी शादी होती है। तो हजरत आमिना के शिकम में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के शिकम अतहर में आ जाता है। यहीं से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मिल जाता है और आपके आने से जो है जो मक्का में खुराफात थे वो मिट जाते हैं। मक्का में वैसे 2 उमर थे, 2 डोम थे जिनको अबू जहल और एक उमर फारूक थे। इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, इन्हीं लोगों को जो है लोग मानते थे और यही लोग जो है रुपया पैसा में भी ज्यादा थे और इनकी बात पे जो है लोग जो है मानते थे और जबर और तशद्दुद करते थे, इस वजह से लोग मानते थे। अबू जहल कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाया था कि ऐ रब्बुल आलमीन तू दोनों उमरों में से एक को मुसलमान फरमा दे, तू दोनों उमरों में से एक को जो है मुसलमान कर दे ताकि मुसलमान गालिब आ जाए काफिरों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को हजरत उमर फारूक के हक में कबूल फरमाई और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ईमान लाए।
اور اسٹارٹنگ میں جو ہے جب آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ جو ہے بچپن ہی سے ذہین تھے، ان پڑھ تو تھے آپ کی جو ہے کسی اسکول سے آپ کی پڑھائی نہیں ہوئی، لیکن اس قدر ذہین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر ذہین بنایا تھا کہ وہ ہر چیز جاننے والے تھے، ہر چیز پہچاننے والے تھے اور محنت کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنے دائی مائی کی ماں کے گھر پہ رہتے تھے اور وہاں جو ہے بکریاں چرانے جاتے تھے اپنے دودھ بھائی کے ساتھ۔